Good morning, students. Today we will discuss the very important topic of the chapter, that is Nernst equation. After completing electrode potential, we know that when electrode potential is determined at 25 degrees Celsius and concentration of each species involved in the reaction is unity, then electrode potential is known as standard electrode potential, E naught. But what will happen if these standard conditions are not applied for that electrode? Then electrode potential is known as non-standard electrode potential and it is denoted as E of that electrode. Okay? Now we will discuss, for example, this is an electrode reaction. Electrode M is kept in M plus N solution. This is the valency of that electrode ions in ionic form. As we know that if M, in place of M we kept Zn, then Zn plus 2. By gaining 2 electron, it is converted into Zn, or Ag plus 1, by the gain of 1 electron converted into Ag. So such electrode reaction, this is a reduction reaction because gain of electron occur. It is half reaction, half cell reaction. That's why it is called electrode reaction. Electrode is only one part of the complete cell. So it is half reaction, reduction reaction. Okay? For this electrode, we will write an equation that how we can calculate non-standard electrode potential for this electrode. Okay, so E M plus N M means reduction, it shows reduction, so we can understand this is reduction potential of electrode M. So at non-standard condition, मतलब concentration unity नहीं है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं है, या दोनों में से एक भी कंडीशन नहीं है, then we can say that it is non-standard electrode potential. This non-standard electrode potential will be calculated by this equation. This is equal to E naught M plus N M, standard electrode potential, minus RT upon NF log concentration of product upon concentration of reactant. This is concentration, this bracket represent molar concentration of this species, concentration of product upon concentration of reactant. This product is solid rod M, like zinc rod is kept in zinc plus 2 solution, so this is solid, and zinc plus 2 solution or Cu plus 2 solution, these are aqueous solution, that's why it is written aqueous. So this equation, with the help of this equation, we can calculate electrode potential of this electrode at non-standard condition. ठीक है? What is R? R is universal gas constant whose value is 8.314. Temperature, T is temperature in Kelvin, and electrons gained by this electrode. If 2 electrons are gained, then it is equal to 2. If 1 electron gained by that electrode, it is equal to N. F is 96500, approximately 96500 Coulomb, it is Faraday constant. Log base E, product concentration upon reactant concentration. Now, concentration of solid species is taken as unity.
सॉलिड स्पीशीज़ का रिएक्शन में आपको कंसंट्रेशन कैसे लेना है, यूनिटी लेना है। जहाँ भी आपकी रिएक्शन में अगर सॉलिड है तो आपको एक्वा सॉल्यूशन के कंपैरिजन में उसको कंसंट्रेशन क्या लेना है, यूनिटी। तो हम लोगों ने इसे चेंज कर लिया, E m+n m यानी नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस RT/NF log base E 1/m+n कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज m+n। इट इज़ यूनिटी, इसका कंसंट्रेशन क्या लिया, यूनिटी। सेम अप्लाई दिस ऑन द जिंक इलेक्ट्रोड। तो अब हम जिंक इलेक्ट्रोड मान लेते हैं एग्जाम्पल, और जिंक इलेक्ट्रोड के लिए रिएक्शन लिखते हैं, और दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल, हम रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहे हैं, सो वी विल राइट रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द जिंक आयन। Clear? So for zinc electrode reduction reaction is this. Now apply the same equation, write the same equation for the zinc electrode. So non-standard potential of zinc, देखिए ये रिडक्शन पोटेंशियल लिखा गया है, +2 से 0 रिडक्शन होता है ना, वैलेंसी डिक्रीज होती है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होती है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक in standard condition, that is E0 of zinc minus same RT/NF log product का concentration, product is solid so it is taken as 1, and concentration of reactant, तो concentration of reactant is Zn+2 ion. Same we can write for copper electrode. ठीक है, so for copper electrode again reduction half reaction, तो non standard potential of copper, standard potential of copper RT minus RT/NF log concentration of product which is unity and concentration of reactant Cu+2 ions. Now what we will do for cell potential? Students, we know that for a complete cell, electrochemical cell, the potential difference between cathode and anode is known as cell potential. So E cell potential of cell potential at non-standard condition is calculated as E cathode minus E anode. We have already discussed this formula कि E cell कैसे निकालते हैं, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। You must remember this thing once again. I will tell you that cathode and anode, what value is written here, reduction potential of cathode as well as reduction potential anode. Although anode पर ऑक्सीडेशन होता है, पर हमें यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखनी है, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल और कैथोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अगर किसी एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल कम है और कैथोड का ज़्यादा है तो हमारा आंसर पॉजिटिव आता है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नाउ अप्लाई दिस, हम एग्जाम्पल कौन सा ले रहे हैं, डैनियल सेल मेड अप ऑफ जिंक एंड कॉपर इलेक्ट्रोड। सो अप्लाई दिस ऑन डैनियल सेल। तो फॉर डैनियल सेल कैथोड क्या होता है डैनियल सेल में, कॉपर, तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल, और एनोड क्या होता है, जिंक, तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल है और इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल है। नाउ Cu+2 Cu, ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या आया है हमारा, E0, ये वैल्यू हम यहाँ पर कॉपर की रख देते हैं, और जिंक का जो वैल्यू हमारी ये आई है, जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये जो हमारा फॉर्मूला आया है, इसको भी हम वैल्यू यहाँ पर जिंक के लिए रख देंगे। ठीक है ना, वी हैव जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ E0 इलेक्ट्रोड ऑफ कॉपर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, वैल्यू रख दी है। नाउ इसको सॉल्व कर लेंगे। देयर आर 4 टर्म्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को रीअरेंज करके आगे लिख लिया गया है। ठीक है, सेकेंड एंड फोर्थ टर्म को साथ में लिख लिया गया है, दिस माइनस इंटू माइनस, यहाँ पे क्या हो गया है, प्लस। नाउ E0 कॉपर माइनस E0 जिंक, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, क्या होगा, E0 सेल, यानी सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल। तो इस टर्म की जगह हम लोगों ने क्या लिख लिया है, E0 सेल। अब यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में माइनस RT/NF कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस RT/NF, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर log 1/,
Cu+2 और माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, माइनस माइनस log 1/Zinc+2 आयंस। ठीक है, फिर से देख लीजिए बच्चों, ई सेल E0 Cu+2 Cu एंड E0 Zinc+2 Zn को हम लोगों ने E0 सेल ले लिया है क्योंकि E0 कैथोड माइनस E0 एनोड होता है, माइनस RT/NF कॉमन ले लिया है और हमारा ब्रैकेट में ये आ गया है। नाउ log m मान लेते हैं, m है log m माइनस log n क्या होता है, log m/n। तो 1/Cu+2 अपॉन 1/Zn+2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, Zn+2 ऊपर आ जाएगा और इनको सॉल्व करके हमारा log Zinc+2 कंसनट्रेशन अपॉन Cu+2 कंसनट्रेशन इस टर्म की जगह ये आ गया ना। हमारी इक्वेशन बन गई है E0 सेल माइनस RT/NF log कंसनट्रेशन ऑफ जिंक जो हमारा प्रोडक्ट था अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ Cu+2 ठीक है। नाउ फाइनल इक्वेशन ई सेल, ये हम ई सेल चल रहा था ना, तो ई सेल यानी सेल पोटेंशियल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन विल बी इक्वल टू E0 सेल, सेल पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन माइनस, अभी बच्चों ये लॉग बेस ई है तो इसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट किया है तो हम 2.303 ले आते हैं, तो 2.303 RT/NF और ये इसमें कन्वर्ट हो गया है ना। और Zinc+2 और Cu+2 कंसनट्रेशन बच्चों यहाँ पे n की वैल्यू 2 है ना, वो मैंने वैल्यू जनरल वैल्यू लेकर आपको यहाँ पे लिखा है, बट इस डैनियल सेल में n की वैल्यू क्या है, 2 है। 2n क्या होता है फिर से डिस्कस कर लेते हैं, n इज इलेक्ट्रॉन गेन बाय इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, अगर कैथोड है तो इलेक्ट्रॉन उसने जितने गेन किए हैं, या एनोड है तो उसने जितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, दैट विल बी इक्वल टू n। तो हम यहाँ पे n क्या रखेंगे, कॉपर ने 2 गेन किए और जिंक ने 2 लूज किए एनोड की तरह से, तो n की वैल्यू 2 होगी। और हम डैनियल सेल यानी जिंक कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए ये नर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं बच्चों। दिस इज नर्स्ट इक्वेशन। व्हाट वी विल डू with the help of Nernst equation, we can calculate cell potential at non-standard condition by this equation। ठीक है, now we will discuss a general Nernst equation। this equation is only for Daniell cell। now general Nernst equation क्या होगी, E cell E0 cell minus 2.303 RT/NF log concentration of product upon reactant। ठीक है, उस जनरल इक्वेशन को देख लेते हैं। For a general equation, suppose our reaction is this: A moles of reactant A, B moles of reactant B, C moles of reactant C and D moles of reactant D। ठीक है, now write the Nernst equation with the help of this reaction। so E cell will be equal to E0 cell माइनस 2.303 RT/NF, जैसे अभी हम लोगों ने प्रूव किया था, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट C कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से। सो C का मोलर कंसंट्रेशन और जितने मोल्स हैं वो कहाँ चला जाएगा, पावर में। ठीक है, अभी जिंक और कॉपर में तो हमारे 1 ही मोल थे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे नहीं लिखा था, 1 ही था। इफ मोर देन 2 products are there in the cell reaction, then multiply both the product, the concentration of C into concentration of product D, और जो उसके मोल्स हैं वो पावर में चले जाएंगे, अपॉन concentration of reactant A multiplied by concentration of reactant B along with their moles। ठीक है, written in power। so concentration of A into concentration of reactant B। so in general we can say that E cell is equal to E0 cell minus 2.303 RT/NF log concentration of product upon concentration of reactant। one more thing students, if R, we know that R is universal gas constant whose value is 8.314, Faraday constant 96500। if temperature which is generally
written in the question, and if temperature is 25 degrees Celsius, that is 298 Kelvin. So at 298 Kelvin, the value of this term 2.303 F, if T is, these two are constant, if T is 298 Kelvin or 25 degrees Celsius, then this value will be equal to 0.059. So generally in question बच्चों टेम्परेचर 298 केल्विन ही होता है, बट 0.059 हम डायरेक्ट ले सकते हैं और इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं. अब एक बार फिर से देख लेंगे हम नर्स्ड इक्वेशन लिखना किसी एक एग्जाम्पल को लेकर. ठीक है, हम नर्स्ड इक्वेशन लिखेंगे. एक क्वेश्चन लेते हैं. सपोज फॉर दिस इक्वेशन वी हैव टू राइट नर्स्ड इक्वेशन. सो फर्स्ट राइट द सेल रिएक्शन. This is cell representation, cell reaction, reactant, product, reactant, product. This is anodic representation, this is cathodic. कैथोड में ये reactant है, ये product है. एनोड में ये reactant है, ये product है. इधर वाला एनोड होता है, इधर वाला कैथोड होता है. Now write the reaction. Mg कन्वर्ट हो रहा है किस में? Mg+2 में. And Zn+2 कन्वर्ट हो रहा है, it is converted into Zn. This is our cell reaction. Now check that it is balanced or not. 1 mole of Mg, 1 mole of Mg, 1 Zn, 1 Zn plus 2 total charge for the in the reactant side and total plus 2 charge in the product side. So this is balanced reaction. Now write the Nernst equation for this reaction. So E cell at non-standard condition will be equal to E naught cell minus 2.303, जैसे हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ लिया था, RT अपॉन NF log कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, प्रोडक्ट 2 है बट इट इज़ यूनिटी, है ना, बिकॉज इट इज़ सॉलिड. सो हम प्रोडक्ट में सॉलिड को यूनिटी 1 ले लेते हैं, तो हमारा कौन सा प्रोडक्ट बचा? केवल ये, यानी Mg+2. और जिंक का कंसनट्रेशन क्या है? यूनिटी. हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि यूनिटी अपॉन रिएक्टेंट कंसनट्रेशन. तो रिएक्टेंट भी 2 हैं, Zn+2 कंसनट्रेशन एंड Mg, बट Mg इज अगेन इट इज सॉलिड, सो इट्स कंसनट्रेशन इज यूनिटी, तो हम उसे नहीं लिखेंगे. क्लियर? मोल्स यहाँ पे 1 हैं, तो यहाँ पे पावर में भी 1 है. सो दिस इज नर्स्ट इक्वेशन फॉर दिस सेल रिप्रेजेंटेशन. गॉट इट? This is very very important. You must know that how we can write the Nernst equation. After that we can calculate and do the numerical. 2.30 RT upon F की जगह हम 0.059 लेंगे. If temperature is 298 Kelvin, then we can write it. Now for this cell representation, first write the equation. This is anode. So Cu is converted into Cu+2 and this is cathode. So Ag plus is converted into Ag. Now +1 और यहाँ पे कितना है? +2. So we have to balance it. So if we multiply Ag +1 into, तो 2 प्लस हो जाएगा. 1 Ag पर +1, 2 Ag पर 2 प्लस चार्ज हो जाएगा और इधर भी 2 प्लस चार्ज है, बट 2 Ag है तो हम इधर भी 2 Ag कर देंगे. नाउ चेक दैट इट इज़ बैलेंस्ड और नॉट. क्या किया हम लोगों ने? चार्ज बैलेंस करने के लिए 1 Ag पे +1 था, 2 कर दिया तो 2 प्लस हो गया और इधर भी 2 प्लस था ओवरऑल चार्ज. Ag एटम्स को 2 करने के लिए यहाँ पे 2. अब हम इसके लिए सेल नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे. सो फॉर दिस सेल E सेल विल बी इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT upon NF log कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट 2 हैं, अगर दोनों आयंस होते हम तो दोनों आयंस को लिखते, बट इट इज़ सॉलिड, इट ओनली दिस इज़ एक्वस सॉल्यूशन में है ये आयन, है ना, तो हम इसको लेंगे. देन प्रोडक्ट का कंसनट्रेशन Cu+2 अपॉन रिएक्टेंट में ओनली दिस स्पीशीज इज इन आयनिक फॉर्म, तो हम इसको लेंगे और Ag+1 का कंसनट्रेशन. नाउ 2 मोल्स हैं तो इनको क्या करेंगे? पावर में 2 लगाएंगे. ठीक है, Cu+2 के 1 मोल्स थे, तो दिस इज़ अवर नर्स्ट इक्वेशन. नाउ बच्चों एक चीज़ और, आपको क्वेश्चन में कंसनट्रेशन ऑफ आयंस इन स्पीशीज़ का कंसनट्रेशन दिया रहेगा, है ना.
आर टी एंड एफ ये वैल्यूज़ भी आपको मालूम है। एन कैसे पता करेंगे, अभी हम क्वेश्चन आगे करेंगे। सो व्हाट इज़ एन इन दिस केस, या व्हाट इज़ एन इन दिस एग्जाम्पल? एन इज़ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय एनोड। एनोड ने कितने इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ने लूज़ किए हैं, Mg से Mg 2 ना। एंड जिंक कैथोड ने कितने गेन किए हैं, कितने गेन किए हैं 2। तो N इज़ 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय एनोड और इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय कैथोड। इन दिस एग्जाम्पल चेक करते हैं, एनोड ने कितने लूज़ किए हैं 2 और कैथोड ने तो +1 चार्ज है, एक गेन किया, तो हम लोगों ने उसको बैलेंस किया है ना इंटू 2 करके। सो अभी कैथोड भी 2 Ag प्लस कितने गेन कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पे वैल्यू क्या हुई 2, इसने लूज़ 2 किए हैं और 2 Ag प्लस हैं तो इन्होंने गेन भी 2 किए हैं, तो N की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, और ये ध्यान रखेंगे मोल्स कहाँ पर जाएंगे, पावर में। आफ्टर in next video we will do the numerical for of Nernst equation. Okay,